دور کسی جنگل میں بہت سے پشو پکشی رہتے تھے۔ وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہاں پر ایک شام ہوتے ہی کوئی بھی پکشی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ لالی چڑیا اور اس کا پتی ٹنکو اس جنگل میں نئے آئے تھے۔ لالی کچھ ہی عرصے میں انڈے دینے والی تھی۔ وہ دونوں شام سے کچھ دیر پہلے ہی اس جنگل میں پہنچے تھے۔ وہ دونوں بھی کافی حیرت زدہ تھے، کیونکہ اس جنگل میں گھونسلے تو کافی تھے مگر کوئی بھی پکشی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹنکو، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، اتنا خوفناک جنگل ہے، کوئی بھی پکشی نظر نہیں آ رہا، کتنا عجیب ہے نا یہ۔ ہاں، عجیب تو ہے، پر کوئی بات نہیں، چلو یہاں کسی سے پوچھتے ہیں، شاید ہمیں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے۔ وہ دونوں پاس کے ہی ایک گھونسلے میں جاتے ہیں۔ دونوں کافی دیر تک دستک دیتے ہیں لیکن کوئی بھی جواب نہیں دیتا، لیکن اندر سے آواز بھی آ رہی تھی جیسے کہ کوئی وہاں پر موجود ہو، لیکن دروازہ کوئی بھی نہیں کھول رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیوں دروازہ نہیں کھول رہے، چلو کوئی بات نہیں، ہم صبح مل لیں گے سب سے، ابھی چلو کوئی گھونسلہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے کچھ ہی آگے گھونسلے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایک ٹوٹا پھوٹا گھونسلہ نظر آتا ہے۔ وہ دونوں رات اسی گھونسلے میں گزارتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ اٹھتے ہیں تو جنگل میں کافی چہل پہل تھی۔ ٹنکو تو باہر دانہ تلاش کرنے چلا گیا۔ لالی گھر پر اکیلی تھی۔ تبھی ایک کوی اس کے پاس آئی۔ نمستے بہن، میرا نام سومی ہے، نئے آئے ہو اس جگہ پر؟ جی بہن جی، بس کل شام کو ہی آئے ہیں۔ اکیلی آئی ہو؟ نہیں، میں اور میرے پتی آئے ہیں۔ لیکن اس جنگل میں کیوں آئے ہو؟ لالی اس کے سوالوں پر کافی حیران تھی۔ اصل میں ہم پہلے جس جنگل میں رہتے تھے وہاں پر سوکھا تھا، اس لیے ہم اس جنگل میں آ گئے ہیں۔ اس جنگل میں کافی ہریالی ہے، لیکن ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، کل شام کو جب ہم لوگ آئے تھے تو جنگل میں مکمل خاموشی تھی۔ ہم نے ایک گھونسلے پر دستک بھی دی لیکن کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ہاں، یہ تو نارمل ہے اس جنگل میں، شام ہونے سے پہلے پہلے سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی باہر نہیں نکلتا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اصل میں یہاں سے کچھ دور ایک کنواں ہے، اس میں ایک خونخوار چیل کا بھوت رہتا ہے۔ شام ہونے کے بعد وہ چیل کنویں سے باہر آتا ہے اور جو کوئی بھی پکشی باہر ہو وہ اس کا شکار کر لیتا ہے، اس لیے سبھی پکشی اپنے اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کیا؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا بہن جی جو مجھے بتا دیا، آج کے بعد ہم بھی شام کے بعد باہر نہیں نکلیں گے۔ وہ کبھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹنکو جب دانہ لے کر گھر آتا ہے تو لالی اس کو سب بتاتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھوت کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ان کی باتیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ مانو، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، شام ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے سب کام کر لیں گے۔ اگر سب پکشی ایسا کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ اچھا دیکھ لیں گے، ابھی تو ہمیں جلد از جلد گھونسلے کی تیاری کرنی ہے، یہ گھونسلہ تو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ اچھا تم یہ بھوجن کھاؤ، میں تب تک نئے گھونسلے کی تیاری کرتا ہوں۔ میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ نہیں، تم یہیں رکو، گھونسلے کا سامان دور سے لانا پڑے گا، میں خود ہی لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر ٹنکو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لالی بھی بھوجن کر کے آرام کرنے لگ جاتی ہے۔ اگلے دن لالی ایک انڈا دیتی ہے۔ وہ دونوں کافی خوش تھے۔ اچھا تم آرام کرو اور انڈے کا دھیان رکھنا، میں گھونسلے کی تیاری کرتا ہوں۔ ٹنکو لالی کو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر ٹنکو بھی گھونسلہ بس بنا ہی چکا تھا، بس چھت کے لیے اسے کچھ لکڑیاں چاہیے تھیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ لکڑیاں کہاں سے ملیں گی۔ بس کچھ ہی دیری کا کام رہ گیا ہے، ایسا کرتا ہوں ابھی لے آتا ہوں، آج رات نئے گھر میں رہیں گے،
उस घोंसले का तो कुछ भरोसा ही नहीं, कब टूट जाए, अंडे के लिए भी ठीक नहीं होगा। उधर लाली बहुत परेशान थी। शाम हो चुकी थी और टिंकू अभी तक नहीं आया था। क्या करूं? मैंने कहा भी था टिंकू को कि जल्दी आना। क्या करूं, अब खुद ढूंढे जाऊं उसको। लेकिन अगर मैं चली गई तो अंडे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन लकड़ियां मिलेंगी कहाँ से? तभी पास से एक तोता काफी तेजी से गुजर रहा था। टिंकू उसे आवाज देकर कहता है, भाई साहब बात सुनिएगा। जल्दी कहो क्या कहना है, और तुम इस वक्त तक यहाँ क्या कर रहे हो? ये घोंसले की छत के लिए लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? मेरा घोंसला बस मुकम्मल ही होने वाला है, मैंने सोचा मुकम्मल करके ही जाऊं। क्या हो गया है तुम्हें? रात होने से पहले कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, और तुम घोंसला बनाने की बात कर रहे हो। और वैसे भी वो लकड़ियां तो भूत वाले कुएं के पास हैं, वहां जाने का तो सोचना भी मत। और अभी जल्दी से अपने घर की तरफ चलो। वो तोता भी काफी जल्दी में था, वो ये कहकर चला गया। टिंकू ने उसकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी और वो कुएं के पास चला गया। ये काफी खामोशी की जगह थी, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। एक लम्हे के लिए तो टिंकू भी डर गया। टिंकू धीरे धीरे लकड़ियां उठाता है, तभी एक चीख की आवाज आती है। लकड़ियां भी टिंकू से नीचे गिर जाती हैं। तभी वो खूंखार चील कुएं से बाहर आ जाता है और टिंकू को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लाली को मारे परेशानी के सारी रात नींद नहीं आती। वो सारी रात यूं ही टिंकू का इंतजार करती रहती है, मगर टिंकू नहीं आता। सुबह होते ही वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। टिंकू को ढूंढते ढूंढते वो थक जाती है, मगर वो नहीं मिलता। कुछ देर सांस लेने के लिए वो बैठती है। तभी वही तोता जो कल रात टिंकू से मिला था, लाली को अकेला देखकर रुक जाता है। क्या बात है बहन, परेशान लग रही हो? हाँ भाई, मेरा पति कल से गायब है। वो घोंसला बनाने निकला था, लेकिन अभी तक नहीं आया। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। क्या तुम्हारे पति का नाम टिंकू है? हाँ, यही नाम है। आपने देखा है उसे कहीं? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने उसे मना भी किया था कि उस तरफ मत जाओ। क्या बात है, मुझे बताएं ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। असल में मैं कल शाम घर वापस जा रहा था, मुझे तुम्हारा पति मिला। वो घोंसले की छत के लिए लकड़ियां ढूंढ रहा था। मैंने उसे बताया कि वो तो खूंखार चील के कुएं के पास है, लेकिन तुम अभी उधर मत जाना, शाम के वक्त कोई भी उधर नहीं जाता। लेकिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। वो कह रहा था कि आज रात इसी घोंसले में गुजारेगा। इसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद घर आ गया था। उसे जरूर उस खूंखार चील ने पकड़ लिया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तो अपने पति के सिवा कोई भी नहीं है। मैं ऐसे ही उस चील का शिकार नहीं बनने दूंगी उसे। आप मुझे उस कुएं का पता बता दें, मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन बहन, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम खुद की जान भी गंवा सकती हो। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। सोमी बहन ने मुझे बताया था कि वो चील पक्षी को पकड़ने के अगले दिन ही शिकार करता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मिट्ठू लाली को चील के कुएं की तरफ ले जाता है। उसे उस तरफ जाता देखकर और पक्षी भी आ जाते हैं। सब लाली को बहुत समझाते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी इतनी परवाह की। मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि अगर मैं वापस ना आई तो आप लोग मेरे अंडे की देखभाल कर लीजिएगा। अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं अपने पति को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकती। सब लाली की इस बेपनाह मोहब्बत को देखकर उदास हो जाते हैं। लाली कुएं की तरफ जाती है। वो कुएं के पास जाकर एक पत्थर फेंकती है और टिंकू को भी आवाज़ देती है।
तभी एक जोरदार आवाज के साथ वो चील बाहर आ जाता है। सब पक्षी डरे होते हैं, मगर वो लाली की हिम्मत बंधाने के लिए अभी भी वहां पर रुके थे। किसकी जुर्रत हुई यहाँ पत्थर फेंकने की? मैंने फेंका है। तुम? एक नन्ही सी चिड़िया, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? इतनी किसी की मजाल नहीं, कोई मुझसे बात करे और तुम मेरे सामने आ खड़ी हुई हो। तुम मेरे पति को छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, तो वो तुम्हारा पति है, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको इतना भी नहीं पता कि शाम होने के बाद मेरे इलाके में कोई पर भी नहीं मार सकता। और वो मुंह उठा के चला आया। तुम भी चली जाओ, अगर जान प्यारी है। मैं अपने पति को लिए बगैर नहीं जाऊंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो। आखिर तुम कब तक मासूम पक्षियों का कत्ल करोगे? आखिर क्या गलती है इन सब की? क्यों तुम इन्हें सुकून से नहीं रहने देते? कसूर? मेरा क्या कसूर था? मैंने भी इन जंगल वालों की बहुत मिन्नत समाजत की थी कि हमें छोड़ दो, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। मेरे सामने इन्होंने मेरी माँ को इस कुएं में फेंक दिया और फिर मुझे भी मार कर फेंक दिया। लेकिन क्यों? मेरा बाप दूसरे पक्षियों के अंडे चुराता था। मेरी माँ हमेशा उसको मना करती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। फिर एक दिन जंगल के पक्षियों ने मिलकर हमारे खानदान को खत्म करने का इरादा बना लिया। लेकिन इसमें मेरा और मेरी माँ का क्या कसूर था? मेरी माँ ने इनकी बहुत मिन्नत की कि वो लोग मुझे छोड़ दें, मगर इन्होंने कहा मैं भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह पक्षियों के अंडे चुराऊंगा और उन्हें मारूंगा। और इन्होंने मुझे भी जलाकर मार दिया। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। इन जंगल वालों ने वाकई ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम भी तो वैसा ही कर रहे हो। हाँ, मैं कर रहा हूँ। मैं इनसे बदला लूँगा और इन सब को ख़त्म करूँगा। देखो, ये सब बहुत शर्मिंदा हैं अपने किए पर और तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन अगर तुम भी ऐसा करते रहे तो फिर तुम में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? और इनमें बहुत से ऐसे पक्षी भी हैं जो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे। तुम इन्हें माफ़ कर दो। लाली की बातों का उस भूत पर काफ़ी असर होता है। ठीक है, तुम मुझे नेक पक्षी लगती हो, इसलिए मैं इन सबको माफ़ कर रहा हूँ। आज के बाद इस जंगल के किसी भी पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम सब आज़ादी के साथ रह सकते हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहते ही वो गायब हो जाता है और टिंकू भी कुएं से बाहर आ जाता है। सब लाली का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सब आज़ादी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बगैर जाने या तहकीक किए बगैर कभी भी किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए।